हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮੀਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੀਕੁਐਂਸ, number of amino acids present and amount of each type of amino acid present. So ये सारा देखिए कि ਅਸੀਂ किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। सब तो पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट की गई दैट वाज ऑफ इंसुलिन प्रोटीन विच वाज determined by Frederick Sanger, and on the basis of which he was awarded with the Nobel Prize in 1958. और इंसुलिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜੋ ਹੈ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ that is very important as it is a main factor to decide the biological function of the particular particular protein. अगर असी एग्जाम्पल लीए टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, लेट अस कंसिडर अमीन having 100 amino acids. Although this is very small number of amino acids in a protein, usually protein they have very large number of amino acids, but for the example we are considering a protein having 100 amino acids, and since in general 20 amino acids are used for the protein structure formation, and there is no restriction on the type of the protein and number of amino acids present in a protein, and even the sequence of the amino acid in a protein. So अगर असी इस पॉइंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 100 amino acid ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 20 ਵੇਜ਼। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ 20 ਵੇਜ਼। To place third amino acid, again 20 ways. So this we can continue up to last, that is 100th amino acid. So again there are 20 ways. So overall total number of ways कितने हो गए? 20 raised to power 100. So for a protein having 100 amino acids, we can have 20 raised to power 100 type of proteins available, जिन्हां विच हर एक प्रोटीन जो बनेगी उसके अपना पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। सो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की अगर अस एग्जाम्पल लीए तो हीमोग्लोबिन दे विच अगर एक अमाइनो एसिड की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, या अगर असी एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दें तो उस दे नाल डिजीज़ हो सकती है, बहुत ही सीरीयस डिजीज़। जिस तरह कि अगर हीमोग्लोबिन दे विच अगर असी देखिए, सो इफ वी रिप्लेस ग्लूटामिक एसिड, if we replace glutamic acid with that of valine, तो उस दिन जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव हो जाएगा एंड इट कॉजेज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दैट इज़ सिकल सैल अनीमिया। तो इस की होंगे जोड़े पेशेंट्स है उन्होंने जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और उन्होंने जोड़े सैल्स है उन्होंने शेप चेंज हो जाती है, और ईवन अगर असी कहिए कि सीरीयस कंडीशन के जोड़े सैल है दे कैन बर्स्ट लीडिंग टू डेथ। So that is the main thing which can explain the seriousness or importance of primary structure. Now coming to secondary structure. So secondary structure which असी main की refer करते हैं, it refers to the conformation which the polypeptide chain assumes as a result of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसका मतलब की है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से देख लिया कि प्रोटीन साढ़े को लॉन्ग चेन बन गई है, उसके सीक्वेंस है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का, और उस तो बाद सैकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कि जी थ्रेड है या ये चेन है ये अपने आप किस तरह एग्जिस्ट करता है, इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह है। सो इज द स्ट्रक्चर वॉज डिटर्मिन्ड बाई लाइनस पॉलिंग इन 1951, और उसने देते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, वन इज़ अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज़ बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। असी गल कर रहे हैं सब तो पहले अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। सो अल्फ़ा हेलिक्स की जी स्ट्रक्चर है इस मेन असी देखना है कि ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ एज्यूम्ड बाय द प्रोटीन इफ़ R groups are
comparatively very small in size. So अगर R ग्रुप्स ਜਿਹੜੇ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ अगर उनका साइज़ काफ़ी छोटा है तो ये वाला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होएगी, और अगर R का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है then the molecule can assume this type of the structure. और इसਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप ਜਿਹੜਾ है एक अमाइनो एसिड का it will make hydrogen bond with NH group of another amino acid residue. सो उस दे नाल की होएगा ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਸੀ ਲੌਂਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो चेन जी है वो पुल अप हो जाएगी और वी कैसे कॉइल अप हो जाएगी और वो स्पाइरल शेप बना लेगी. सो इट मेक्स अ स्पाइरल शेप. और जी स्पाइरल शेप है इट इज़ कॉल्ड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर में असी 3, 6, 13 हेलिक्स भी करने हैं, बिकॉज इट शोज़ कि एक जो टर्न है एक स्पाइरल है या एक टर्न है उस 3 to 6 अमाइनो एसिड्स आएंगे, और 13 की शो कर रहा है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी तो उस सारे को साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी एंड दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन्स 13 मेंबर्स. सो द name 3, 6, 13 helix structure tells us that in case of helix each turn consists of 3 to 6 amino acids and there is a formation of 13 membered ring due to hydrogen bonding. और जिहड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये अगर आप स्टार्ट करिए और फर्स्ट अमाइनो एसिड नू ले लिए तो फर्स्ट अमाइनो एसिड के ग्रुप की 4th अमाइनो एसिड नाल हो रही है. सो with every 4th amino acid we are having this type of hydrogen bonding. और हर एक जो टर्न है उन्होंने जो सक्सेसिव टर्न्स they have the distance of about 5.4 angstrom. तो अगर अस इसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए, so this structure is इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी. सो अगर आप इतों देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है एंड दिस इज नोन एज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. सो राइट हैंडेड इसमें कहने क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्सिस साइड पर आ रहा है और इसमें असी देख रहे हैं तो अगर जो टर्न ले रहा है तो एक क्लॉकवाइज डायरैक्शन के इसका टर्न आ रहा है. और इस अगर इतने मान लो किसी अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O आ रहा है और सपोज इतने किसी अमाइनो एसिड का NH ग्रुप आ रहा है तो ये जो C डबल बॉन्ड O है दूसरी टर्न के NH के नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. इस तरह अगर ये NH है ये अपने पैरेलल जो टर्न आ रहा है उत्थे C डबल बॉन्ड O के नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. सो इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी है हो जाएगी और उस ये टर्न या स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाएगी. हुण जी स्ट्रक्चर से कह रहे हैं कि राइट हैंडेड है, इट कैन ऑल्सो बी लैफ्ट हैंडेड, बट क्योंकि जो अल्फा अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स विच प्रेजेंट है these amino acids they are actually L amino acids. So it means it was proposed theoretically कि for these amino acids to retain their stability they have to be right handed, they have to be in the right handed helix structure ताकि जो L amino acid जी कॉन्फर्मेशन है वो स्टेबल हो सके. तो इसका मतलब कि है जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जिस तरह कि अगर असी स्क्रू द टर्न्स देखते हैं वो भी राइट हैंडेड ही होंगे ने, राइट हैंडेड वो मूव करते हैं. सो इसका मतलब कि है कि जिन्हें भी असी स्टेबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखांगे प्रोटीन्स की वो हमेशा ही राइट हैंडेड होंगे. और इस जी एग्जाम्पल है द एग्जाम्पल इज ऑफ फाइब्रस प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन nails, hair, skin and even we can have wool. इसी तरह मायोसिन की असी गल करते हैं
myosin जो है that is present in muscles, it also assume the alpha helix structure, right handed alpha helix structure. और alpha helix structure ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अगर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, so it is elastic in nature. और अगर आप हेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ हेयर ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ स्ट्रैच करते हैं ਤਾਂ थोड़ी ਜਿਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हेयर ਨੂੰ स्ट्रैच ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ present ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So this is about the alpha helix structure, which is the secondary level of structure of the proteins. So in next lecture we will do the beta pleated structure.